So guys, what's up? How are you doing? मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी. एक second. Sorry for the noise. I thought I will share my thoughts with each one of you while making something that I really like, honestly, which is coffee. Today in the morning when I was coming back home from the gym, मेरे मन में एक ख्याल आया और मेरा मन किया कि मैं उस बारे में बात, और मैंने ये होप भी किया कि ये ख्याल मेरे मन में रहना चाहिए जब तक मैं पॉडकास्ट बनाने के पॉइंट पर आऊँ. कहीं फीलिंग मेरे मन से चली ना जाए. वेस्ट में कॉफ़ी. हाँ, ख्याल कुछ ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है एक इंसान की जीत और हार, अगर कोई मेटाफर मेरे मन में आता है, इफ देयर इज एनी मेटाफर दैट कैन ड्रॉ अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिफीट and victory, then that would be sunrise and sunset. Sunrise and sunset are perfect metaphor of victory and defeat, क्योंकि इन दोनों में एक पॉइंट आता है जिसे हम डॉन कहते हैं. विक्ट्री, देयर कम्स अ पॉइंट इन आवर लाइव्स वेयर इट dawns upon us that, oh, we were winning all along. We were winning, we are winning. And when we realize this feeling, our convictions become stronger and we start thriving. Similarly, when somebody is defeat does not look like black or white. Defeat is pretty much like a sunset, you know. Most people, they remain in the feeling of delusion. Sorry for that noise. They remain in the feeling of delusion, stuck in time, stuck in the past, stuck in the memories of past victory, but they don't realize that they are on the path of defeat. So they look pretty delusional, and then there comes a point when it dawns upon them that they are actually defeated, and then जिंदगी का अंधेरा आ जाता है, and nothing makes sense to them anymore. So अगर विक्ट्री और डिफीट को अगर मैं किसी चीज़ से कंपेयर करना चाहूँगा तो वो सूरज का उगना और उसका ढलना है. इंस्टेंटली विक्ट्री नहीं होती, इंस्टेंटली डिफीट भी नहीं होती. It's a very slow progression of things that you cannot pinpoint at. You can never say कि अरे उस पॉइंट से मैं जीत गया, उस पॉइंट से मैं हार गया. It's a progression of our habits, our tendencies, our habits and our tendencies, you know. And अगर और spiritual level पर इसको बोलूँ तो our karmas, cluster of our karmas. That is why I always emphasize and I say that faith is everything. We are nothing without faith. This life is nothing without faith. We are delusional beings. We are self-destructive. We cause pain. We create more pain. We create more suffering. Everything that we do away from faith, from the eyes of God and that eternal truth. Everything that we do away from that, it is pure destruction, pure suffering. So that's why it's very important for us to align our lives with something which is bigger than us, the creator, you know, the higher power, the universe, the whatever, almighty, whatever you can call it, you know, there are many names to give it. So let's just not get stuck in the name game, and please understand what I'm trying to say over here, because I also feel that the real meaning of truly trusting yourself is actually humbly knowing that you cannot trust yourself. That is the real wisdom and knowledge. Now, this is an expression of extreme and purest form of humility, and this is also it is a paradox. You know, it sounds the most powerless thing to say, but at the same time, this is the most powerful thing one can say and feel, because this statement or this insight will only come to those who have realized that they cannot trust themselves if they are not aligned with the higher power. But they can trust the creator, but they cannot trust themselves on their own. It's almost like now I can see the bubbles in the water because boiling. It's almost like a bubble saying I trust myself, not even having an idea that a bubble has been created and formed, you know, in the vast body of water. So bubble is nothing without the water, or ripples are a better example of that. But yeah, I hope I'm making sense. So one can only say that I do not trust myself when one has realized that we all are flawed, we are
full of flaws. Our karma, everything is designed to destroy us. That's why faith is everything. And when one says that I don't trust myself, that means that person has realized the power of faith. Because the moment you say I don't trust myself, you do not associate your true self with that myself that you're referring to. It's very confusing, but I hope those who know will get it. The moment you know you are not that self who's creating those causes and suffering, you are far superior and bigger and vaster than that. That's when you realize I do not trust myself. Because that guy who is making the choice is full of sufferings and pain. This is my coffee talk. साइकिल चलाते चलाते मेरे मन में बात आई थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस बारे में बात कर पाऊंगा। अभी भी मुझे लगता है मैं ठीक से जताया नहीं और बताया नहीं इस बात को। बट कुछ और गहरा मन से निकल गया। हमेशा ऐसे ही होता है, कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। कॉफी बन रही है और हम बातें अपनी चालू। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खाना खजाना खजाना बना के आ रहा हूँ। हमें ब्लैक कॉफी, वाओ कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। चेक द टाइम। सो ये है। एंड 5:15 हो रहे हैं और मुझे आज मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी है, बट मेरे मन का कीड़ा कह रहा है मैं फुटबॉल खेल लूँ आज भी। क्या मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ? आई डोंट नो मैन, लेट्स सी। मन का अपना एक मन होता है, ऐसा लगता है कभी कभार। और मैं सच में क्या हूँ, कौन हूँ, आई डोंट थिंक सो एनीवन एनीवन नोज दैट। एंड आई थिंक थोड़ा सा मुझे मेरे पापा ने समझाया और जाना है, बट मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी जानता है। और मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद से एहसास हुआ है शायद यही केस होता है मैक्सिमम चीज़ों में। और मुझे इतने और जानते हैं, उस पाथ पे निकल जाते हैं। सेल्फ डिस्कवरी जो भी वर्ड है वो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ नोइंग। जब उस पाथ पे जाते हैं, हम खुद को जब पहचानते हैं तो हम पूरी दुनिया को पहचान जाते हैं। तो आई थिंक एक इंसान जिसको खुद का ज्ञान है, सिर्फ उसी इंसान को दूसरों का भी ज्ञान है। अब सोचो, जिस दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है वो खुद कौन है, वो तुम्हें कैसे बताएंगे एक भी चीज तुम्हारे बारे में। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई तुम्हें समझ जाए, तुम्हारे मन की बात कोई जान ले, कोई तुम्हें ऐसा महसूस करा दे कि भाई आज बात करके बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया भाई, आज मुझे लगा मुझे किसी ने सुन लिया। या कभी कभार ऐसा भीड़ में लगे कि अरे भाई मुझे फाइनली किसी ने आज देख लिया। मैं साला थक चुका था ये नकाब पहने पहने, और आज ऐसा लगा कि जिसने मुझे इस नकाब के पीछे देख लिया, मैं हूँ कौन। ऐसे जो ऐसी जो चीज़ें बहुत कम होती हैं जीवन में, होती ही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि खुद का ज्ञान वाले लोग इतने ज़्यादा बहुत ही कम होते हैं। और जो होते हैं वो ऐसी भीड़ भड़ाके की जगह में आसानी से दिखते हैं और मिलते भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर हर बंदा आ जाए वहां पर वो क्यों जाएंगे। जिसको हर जगह, जिन लोगों को वहां जाना है जहाँ पे हर लोगों को जाना है, तो वहां पे वो इंसान क्यों जाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अलग पाथ चुन चुका है जहाँ पे किसी को नहीं जाना। तो फिर वो उस जगह पर भी क्यों मिलेगा जहाँ पर सब जाना चाहते हैं? कॉमन सेंस की बात ये है। और अगर आपको हल्की सी मन में आपकी गुहार आ गई है खुद को पहचानने की, और आप फिर भी उन जगहों पे जाते हो जहाँ पर सब जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे कोई देख नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, क्योंकि आप अंदर से तो बदल रहे हो, आपकी इनर रियलिटी बदल चुकी है, बदलने की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन बाहरी रूप में आपने किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है, पुरानी चीजों को। तो वो जो फ्रिक्शन है ना, वो बहुत सफरिंग क्रिएट करता है, दर्दनाक। क्योंकि ना तो हम ये चुन पाते हैं पूरी तरह, ना हम वो चुन पाते हैं। जो करे जाता है ना पूरी तरह अपने आप को चुनने का, अंदर से हम कौन है, वो करेज सिर्फ फेथ से आता है, प्रेयर से आता है, ध्यान से आता है, जो भी चीज बोल लो। मैं 3-4 चीजों का नाम इसलिए लेता हूँ ताकि किसी को ना लगे कि अरे भाई मेरे को तो ये लगता है, मेरे को तो वो लगता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उन बेवकूफों के बेवकूफी से भरे हुए डिबेट में घुसो। तो मैं पहले क्लियर करना था, जो भी आपके पाथ में लिखा हुआ है, जो भी आप करते हैं, अगर वो कोई प्रैक्टिस है, अगर वो आपके लिए लिखी है और आपका पाथ है, तो डेफिनेटली वो सुप्रीम है आपके लिए। कुछ सही गलत नहीं होता प्रैक्टिस में, कंपटीशन नहीं है ये। सो जस्ट चेक द टाइम। कॉफी के लिए मैं टाइम चेक कर रहा हूँ। अरे भाई मेरी कॉफी बनने की कगार पे आ चुकी है, और साला 14 मिनट की मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है। पता नहीं ये पॉडकास्ट में इसको, ये पॉडकास्ट ही है शायद, पॉडकास्ट गाइस, ओ माय गॉड, हमने पॉडकास्ट बना दिया है। कॉफी बन गई भाई। आप लोगों ने वो चीज़ देख ली है जो दुनिया में कोई नहीं देख पाया।
मुझे कॉफी बनाते होते, मजाक कर रहा हूँ, राइट टाइम पर कॉफी पीता हूँ मैं, हल्का सा वहाँ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात इसके साथ कितनी बातें कैसे। मैं जानबूझ के फेस करके खड़ा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि शायद नॉट शायद बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। कॉमन सेंस ये कहती है अगर मैं वहां देख के बात करूंगा तो शायद मैं शोर को इनवाइट करूंगा अपनी अपनी रिकॉर्डिंग में। नीचे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ खड़े हुए हैं, उन्होंने तीन लोगों ने रोड के बीच में गाड़ी पार्क सी कर दी, खड़ी कर दी, उस चक्कर में जाम हो गया। दैट्स पढ़े लिखे का मार। एक्चुअली मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मैं फाइनली अपने और नेचुरल स्पेस में आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, और अपनी एक बहुत सबसे पर्सनल इंटीमेट स्पेस में आपको इनवाइट कर पा रहा हूँ। उस पॉडकास्ट का एक अलग चार्म है, इट्स लाइक अ शो, और वो तो चलने वाले की दुआ से इंशाल्लाह। और ये जो वार्तालाप है ये भी चलता रहेगा इस टाइप का। और एवरीथिंग दैट आई एम एबल टू डू, ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आई एम अलाउड टू। लाइफ इज काइंड, गॉड इज काइंड, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय कॉफी नाउ एंड होपफुली माय लेग इज बेटर। आई विल अपडेट यू कि नहीं खेल पाया। बाय गाइस, अब हम जरा को बंद कर देते हैं।